Hello listening friends and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों, और इस प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। If you are listening to us for the first time, यदि आप हमारा कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं, we recently began a series entitled Empowered by Praise. तो हमने कुछ समय पहले ही ये श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है स्तुति के द्वारा सामर्थ पाना। Last time we learned that praise reestablishes God's reign over our hearts. पिछली बार हमने देखा कि स्तुति परमेश्वर के राज्य को हमारे हृदयों पर पुनर्स्थापित करती है। We have learned that praise reinforces our relationship with God. हमने सीखा कि स्तुति परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है। We also established that the secret to joy and fulfillment in life हमने ये भी सिद्ध किया कि जीवन में भरपूरी और आनंद का रहस्य is to be able always to praise the Lord. हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहने में है। We all understand that having connection with powerful people gets things done. हम सब ये बात समझते हैं कि शक्तिशाली लोगों के साथ जान पहचान से बहुत सारे काम हो जाते हैं। Connection with powerful people means it is not what you know, but who you know. शक्तिशाली लोगों के साथ संबंध का अर्थ ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, परंतु ये कि आप किसको जानते हैं। Connection with a powerful person can get things done. एक सामर्थी व्यक्ति के साथ जान पहचान से कार्य पूरे किए जा सकते हैं। Connection with a powerful person can get you to places that you can never get to by yourself. एक सामर्थी व्यक्ति के साथ संबंध आपको उन स्थानों तक ले जा सकता है जहां आप अपने आप कभी नहीं पहुंच सकते। Today I want to tell you about the importance of both who you know and what you know. आप किसे जानते हैं और आप क्या जानते हैं, आज मैं आपको इन दोनों बातों के महत्व के विषय में बताऊंगा। Today I want to tell you about the ultimate connection. आज मैं आपको उस मूल संबंध के विषय में बताना चाहता हूं। Today I want you to know how to develop the best connection with the most powerful person in the universe. आज मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि इस सृष्टि में सबसे सामर्थी व्यक्ति के साथ उत्तम संबंध कैसे जोड़ा जाता है। Today I'm going to show you how to connect with the King of Kings and the Lord of Lords. आज मैं आपको दिखाऊंगा कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के साथ कैसे जुड़े। This connection will literally cause people to see that you have great power. इस संबंध के स्थापित होने के कारण लोग देखेंगे कि आपके पास एक बड़ी शक्ति है, Greater joy than anyone can imagine. किसी की कल्पना से भी महान आनंद, Greater peace than anyone can perceive. किसी के अनुभव से भी बड़ी शांति। People literally will be asking, लोग आकर पूछेंगे, what is it that has transformed your life? ये क्या है जिसने तुम्हारा जीवन ही बदल दिया? Who is it that makes your countenance glow? वो कौन है जो तुम्हारे चेहरे की चमक बन गया है? Who is it that gives you such joy in the midst of your tough circumstances? वो कौन है जो तुम्हें तुम्हारी कठिन परिस्थितियों के बीच भी ऐसा आनंद देता है? Who is it who makes you contented in spite of your difficulty? वो कौन है जो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं के बावजूद भी संतुष्ट रखता है? I'm going to tell you all about this unique power today. इस अद्भुत शक्ति के विषय में आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। What is that greatest connection in the world? इस सृष्टि में वो सबसे महान संबंध क्या है? It is developing a life of praise. ये है स्तुति के जीवन को विकसित करना। I'm not talking about a few seconds of the day or a few minutes of the day. मैं दिन के कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। I am talking about a whole life of praise. मैं स्तुति के समस्त जीवन के विषय में बात कर रहा हूँ। Why do I say that? मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? Please listen to me very carefully. कृपया मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Because praise is the one thing you do that lines you up with the angels of heaven. क्योंकि आपके द्वारा स्तुति करना ही एक वो कार्य है जो आपको स्वर्गदूतों के साथ कतार में खड़ा करता है। Praise is the one thing that you do that puts you in agreement with what's going on full time in heaven. आपके द्वारा की जाती स्तुति ही वो एक कार्य है जो आपको स्वर्ग में हर समय चल रहे कार्य में सहमति में लाता है। Praise is the one thing you do here on earth that is in full agreement with the will of heaven. इस धरती पर स्तुति ही वो एक कार्य है जो स्वर्ग की विरासत के साथ पूर्ण समझौता है।
Revelation chapter 5 verse 12 tells us प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 12 पद हमें बताता है that those in heaven are constantly praising God and saying, कि वो जो स्वर्ग में हैं लगातार परमेश्वर की स्तुति करते और कहते रहते हैं, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। The angels of God, the saints who have gone before us, परमेश्वर के स्वर्गदूत, वो संत जो परमेश्वर के सामने हैं, and all the created things are praising God in heaven. और सब सृष्टि की हुई वस्तुएं स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। And when you and I begin to develop the life of praise, और जब आप और मैं स्तुति का जीवन विकसित करना प्रारंभ करते हैं, we will line up with the will of heaven. तो हम स्वर्गीय विरासत में खड़े हो जाते हैं। When you and I die, जब आप और मैं मरते हैं, our bodies are going to be buried, हमारे शरीर दफना दिए जाएंगे, but our praises will not. परंतु हमारी स्तुति नहीं। Our praises will continue in heaven because our praises will never die. हमारी स्तुति स्वर्ग में हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि हमारी स्तुति कभी नहीं मरेगी। Now I want you to ask yourself two questions. अब मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से 2 प्रश्न पूछें। Do I have a praising life? क्या मेरे पास स्तुति का जीवन है? And the second question is this. और दूसरा प्रश्न ये है, If you don't have praising life, how are you going to spend eternity praising God? यदि आपके पास स्तुति का जीवन नहीं है, तो आप अपना अनंत काल परमेश्वर की स्तुति करते हुए कैसे बिताएंगे? Ask yourself these two questions. अपने आप से ये 2 प्रश्न पूछिए, Because if your life does not consist of constant praise, क्योंकि यदि आपका जीवन लगातार स्तुति वाला नहीं है, something is wrong with your salvation. तो आपके उद्धार के साथ कुछ गड़बड़ है। It may be because you do not know the Lord Jesus Christ as your Savior. ये शायद इसलिए हो क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में शायद नहीं जानते हैं। Oh yes, you might be a religious person, ओ हाँ, हो सकता है कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हों, but you do not know the Lord Jesus Christ. परंतु आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, Because to know Him is to love Him. क्योंकि उसे जानना उसे प्यार करना है, And to love Him is to praise Him. और उसे प्यार करना उसकी स्तुति करना है। Don't let those questions pass you by. इन प्रश्नों को अपने पास से निकल न जाने दीजिए। If you are not delighted in the praises of God here on earth, यदि आप इस धरती पर परमेश्वर की स्तुति में आनंदित नहीं हैं, how will you be delighted in praising Him full time in heaven? तो स्वर्ग में हर समय उसकी स्तुति करते हुए आप कैसे आनंदित होंगे? Now I'm here to tell you that praise demands change. अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्तुति परिवर्तन की मांग करती है। In fact, praise itself causes change in our lives. बल्कि स्तुति खुद ही आपके जीवन में परिवर्तन ले आती है। Now, I know that change is not easy. अब मुझे पता है कि परिवर्तन आसान नहीं है। I know that some of you have a hard time bringing change into your life. मुझे पता है कि आप में से कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। Most people don't want change. अधिकतर लोग परिवर्तन नहीं चाहते। Most people don't want to be confused with the facts अधिकतर लोग तथ्यों में उलझना नहीं चाहते, because their mind is already made up by what they were taught. क्योंकि उनको दी गई शिक्षा के कारण उनका मन पहले से ही सख्त हो चुका है। Most people prefer to stay in their comfort zones. अधिकतर लोग अपने आरामदायक भाग में रहना ही पसंद करते हैं। But I hope that you are going to listen to me not just with your ears, परंतु मुझे आशा है कि आप मेरी बात को केवल अपने कानों से ही नहीं सुनेंगे, but with your heart and your mind, परंतु अपने मन और दिमाग से भी सुनेंगे, because I am going to help you to change. क्योंकि मैं बदलाव लाने में आपकी सहायता करने वाला हूँ। Not by persuading you or your emotions, आपको या आपकी भावनाओं को उकसा कर नहीं, but by showing you the facts. परंतु आपको तथ्य दिखाने के द्वारा। With the power of God the Holy Spirit, you will be a changed person this day. परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज के बाद आप एक बदले हुए व्यक्ति होंगे। In fact, I was thinking about change and I read this week a story about a woman. बल्कि बदलाव के विषय में सोचते हुए इस सप्ताह एक औरत के विषय में मैंने एक कहानी पढ़ी। She had perfected hypochondria to
a fine art. उसने हाइपोकॉन्ड्रिया को एक बढ़िया कला में ढाल दिया। Now, hypochondria is when you are really well, but you think you are sick. अब ये हाइपोकॉन्ड्रिया का अर्थ है कि जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं परंतु आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं। Two of this lady's dearest friends tried everything to lift her spirits, but nothing worked. इस स्त्री के दो मित्रों ने उसे इससे उभारने के लिए सब कुछ किया परंतु कुछ काम ना आया। They tried to encourage her, it didn't work. उन्होंने उसे प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया पर असफल रहे। They tried to help her to change her attitude, it didn't work. उन्होंने उसका व्यवहार बदलने में सहायता करना चाहा परंतु असफल रहे। But didn't the doctor give her a new medicine? परंतु क्या डॉक्टर ने उसको नई दवाई नहीं दी थी? And her friend Anne said, oh yes, he did. और उसके मित्र ने जवाब दिया, ओ हाँ उसने दी थी। Well, has she taken it? तो क्या उसने खाई? She said, oh no, she's afraid it might work. उसने कहा, ओ नहीं, वो डरती है कि इससे शायद वो ठीक हो जाएगी। Now I understand that change is not easy. अब मैं जानता हूं कि बदलाव आसान नहीं है, But here's the good news. परंतु ये है खुशखबरी, Praise does work. स्तुति काम करती है, But you have to try it. परंतु आपको इसे प्रयोग करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। You have to practice it. आपको इसे करना पड़ेगा, You have to exercise it. आपको इसे प्रयोग में लाना पड़ेगा, You have to get into it. आपको इसमें शामिल होना होगा। You have to begin by a decision of your will and your mind that you will be a praising Christian. आपको अपने मन और इच्छा से निर्णय करके प्रारंभ करना होगा कि आप एक स्तुति के मसीही होंगे। Praise will change you for good. स्तुति भलाई के लिए आपको परिवर्तित कर देगी। Praise will change your life and your attitude. स्तुति आपके व्यवहार और आपके जीवन को बदल देगी। Praise will change your relationship and your perceptions. स्तुति आपके संबंधों और बोध को बदल देगी। Praise will even change your sensitivities and your desires. स्तुति यहाँ तक कि आपकी संवेदनाओं और इच्छाओं को भी बदल देगी। You may be asking, how can praise change my attitude? आप शायद पूछ रहे होंगे, स्तुति मेरा व्यवहार कैसे बदल सकती है? Well, listen carefully to what I'm going to tell you. आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। Some people naturally are pleasant people. कुछ लोग स्वाभाविक ही आनंददायक लोग होते हैं। They have naturally what others work hard at. उनके पास वो सब स्वाभाविक ही होता है जिसे पाने के लिए दूसरे कड़ा परिश्रम करते हैं। But there are very, very few of them. परंतु ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। Most people have a selfish and self-centered attitude. अधिकतर लोगों का व्यवहार स्वार्थी और आत्म केंद्रित है। And I want to tell you that attitude makes all the difference in the world. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवहार ही संसार में एक निर्णायक तथ्य है। Your attitude can influence other people. आपका व्यवहार दूसरे लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। So how can praise change your attitude then? तो स्तुति आपका व्यवहार कैसे बदल सकती है? How can praise change your temperament? स्तुति आपका स्वभाव कैसे बदल सकती है? How can praise fills you with joy all the time? स्तुति कैसे हर समय आपको आनंद के साथ भरा हुआ रख सकती है? I'm going to show you how. मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे। Last time I showed you the importance of praise. पिछली बार मैंने आपको स्तुति का महत्व बताया था। In these coming series of messages, I'm going to show you how praise can change you. इन आने वाली संदेश श्रृंखलाओं में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्तुति कैसे आपको बदल सकती है। When you take time to praise the Lord, जब आप प्रभु की स्तुति करने में समय बिताते हैं, you're going to find it nearly impossible to harbor anger. आप पाएंगे कि क्रोध को स्थान देना लगभग असंभव होगा। You will find it nearly impossible to harbor bitterness and resentment and hatred toward others. आप पाएंगे कि दूसरों के प्रति नफरत, जलन और कड़वाहट को स्थान देना तकरीबन असंभव होगा। Let me explain this. मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। When you develop the life of praise, जब आप स्तुति का जीवन विकसित करते हैं, you will have a positive attitude toward God. तो परमेश्वर के प्रति आपका रवैया सकारात्मक हो जाएगा। And when you have a positive attitude toward God, और जब परमेश्वर के प्रति आपका रवैया सकारात्मक होगा, you will not be able to continue to have a negative attitude toward people. तो आप लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया नहीं रख पाएंगे। When you have a joyful attitude toward God, जब परमेश्वर के प्रति आपका व्यवहार आनंदपूर्ण होगा, you will soon discover that your negative spirit toward others and your positive spirit toward the Lord
cannot possibly dwell together. तो जल्द ही आप पाएंगे कि लोगों के प्रति आपका नकारात्मक आत्मा और प्रभु के प्रति आपका सकारात्मक आत्मा संभवतः साथ साथ नहीं रह सकते। When you begin to praise the Lord, जब आप प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं the two opposite attitudes cannot coexist. तो दो विपरीत व्यवहार एक साथ नहीं रह सकते। You cannot persist in praise without your negative spirit giving way to the positive Holy Spirit. आप स्तुति में कायम नहीं रह सकते जब तक आपका नकारात्मक आत्मा सकारात्मक पवित्र आत्मा को रास्ता नहीं देता। Why? क्यों? The secret lies in two scriptures. रहस्य दो वचनों में है And I want to tell you all about them in our next broadcast. और इनके विषय में सब कुछ मैं आपको अपने अगले प्रसारण में बताना चाहता हूं। But I want you to read ahead. परंतु मैं चाहता हूं कि उससे पहले ही आप इन्हें पढ़ लें। I want you to prepare your mind for something that will change your life. मैं चाहता हूं कि आप अपने मन को एक ऐसी बात के लिए तैयार कर लें जो आपका जीवन बदल देगी। I want you to read Isaiah 61, मैं चाहता हूं कि आप यशाया 61 अध्याय पढ़ें and I want you to read the Gospel of Luke chapter 4. और चाहता हूं कि आप लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय भी पढ़ें। And as you read ahead और जब आप पहले ही इसे पढ़ते हैं and prepare your heart, और अपने मन को तैयार करते हैं, I want you to be prepared to change your attitude, मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यवहार में बदलाव के लिए भी तैयार रहें and that will change your life. और ये आपके जीवन को बदल देगा। Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।